Very good morning to one and all gathered here, all my parents and all my little champs. My pleasure to be a moderator for today's webinar. I, Prayag Murgale, welcomes you all on behalf of Podar International School, Hingoli. I would like to extend a very warm welcome to all our guests and panelists. So welcome you all, ma'am and sir. We appreciate your time taking off from your busy schedule to join us today. So yoga, in Hindi it is called yoga, is essentially a spiritual and physical discipline which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. Beginning of yoga was developed by Indians over 5,000 years ago, and the word, this yoga word, was mentioned in the oldest sacred text, that is Rig Veda. And to sustain this precious form of Indian culture, the idea of celebrating this International Day of Yoga was first proposed by our current Prime Minister, Mr. Narendra Modi sir, during his speech at the United Nations General Assembly in 2014. A certain day for yoga was introduced to raise awareness worldwide about the importance and impact of yoga on the health of the people. Hence, we have been celebrating the International Day of Yoga annually on 21st of June since 2015. Therefore, we have gathered here prior to celebration, spread awareness and importance about yoga through this webinar. So to begin this webinar, I'm pleased to introduce all the expertise who would be enlightening us today about various aspects of yoga. So first, on my right side, we have Dr. Puri Shastri ma'am. She is a practicing as a Hindi professor at Model College Hingoli. She is also State Executive Council member of Mahila Patanjali Yoga Samiti Maharashtra East. She is an naturopathy and working as a hair trainer at Patanjali. She has also cleared Ministry of Ayush Yoga exam 3 level, and she is on to go for further level. She has successfully conducted more than 600 training workshops throughout Maharashtra to spread awareness about yoga. So welcome to ma'am once again, and thank you. We are very lucky to have you on this webinar. On second, we have Raksha Bagnia ma'am. She is a district president of yoga and she has been practitioner of pranayama. So today we will definitely come to know many things from her about pranayama. So welcome you ma'am once again. Then we have Preeti Savitkar ma'am. She is a yoga expert. We have seen her practicing yoga in her school and in different places, and she is practicing this yoga since last 5 years. So welcome you ma'am. And at last we have our last finalist, that is none other than our own respected principal sir, Sanjeev Kumar Bhargava sir. Sir is a motivational speaker, an active learner, enthusiastic innovator, and keen observer in the field of education. Sir has vast experience of teaching and training in the field of education over the last 20 years and currently is active as a principal in Podar Education Network since last 6 years. Sir, welcome you once again. So to begin this workshop, I would like to ask
Ashmi ma'am, like she is already expert in naturopathy. So ma'am, we would like to know what is naturopathy and what are the treatments that comes under this naturopathy. नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या फिर निसर्ग उपचार, तीनों में से आप किसी भी शब्द को पकड़ लें। सर्वम खलिदम ब्रह्मास्मि, इस उक्ति को लेकर प्राकृतिक चिकित्सा को मैं थोड़ा सा आपके सामने विस्तृत करूं कि हमारे पूरी ब्रह्मांड में 5 तत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 5 तत्व हमारे हाथ की ये 5 उंगलियों से निर्देशित हो सकते हैं। ये अग्नि तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। और हमारे शरीर में 7 धातु, रस, रक्त, मज्जा, मेद, शुक्र। तो ऐसे 7 धातुओं पर जो चिकित्सा होती है उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। प्रकृति के माध्यम से इस शरीर की जो चिकित्सा है उसे प्राकृतिक चिकित्सा कह सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम आपने बताया कि प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसमें ट्रीटमेंट जो आते हैं बहुत सारे, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, तो हमारे शरीर में वैसे ट्रीटमेंट जब शब्द आता है तो उसके साथ डिसीज ये शब्द भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट आप कब करेंगे? जब आपकी सेहत बिगड़ जाए। तो आपकी सेहत क्यों बिगड़ती है? एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो बैक्टीरिया क्या हमारे शरीर में रहने का उसे कोई हक है या जगह है? तो है ही नहीं। तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जा ही नहीं सकते और रह ही नहीं सकते। कब तक? जब तक विजातीय तत्व उन्हें जगह नहीं देते, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको जगह बनाकर नहीं देते। तो हमारे शरीर को जब हम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, तो जैसे जैसे बिगड़ना शरीर का शुरू हो जाता है तो हमें डिसीज होने शुरू हो जाते हैं, और फिर डिसीज हो जाए तो डिसीज ठीक करना पड़ता है। तो डिसीज ही ना हो ये पहली बात, और अगर डिसीज हो तो उसका एक ही कारण है, एकमात्र कारण है कि हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स या विजातीय तत्व है वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को हम बाहर फेंके, ये चिकित्सा का मूल और इसी पर डिपेंड है ये चिकित्सा, जो जल के माध्यम से, जो मिट्टी के माध्यम से, जो प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से, आहार के माध्यम से, रसाहार के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से की जा सकती है। और वायु मतलब हवा से जितने भी हम अलग दे सकते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और फिर सूर्य चिकित्सा, इन 10 आयामों से हम प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं। Thank you, ma'am. You have said that we can use multiple ways of naturopathy. In that you have referred pranayam also. We have Raksha Bagdiya ma'am. She is expert in the pranayam. Ma'am, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं, you have seen like in this pandemic many people have suffered from the breathing problems and they're still suffering with this coronavirus is like this. So we would like to know from you that what are some of the breathing exercises in the pranayam that we can practice at home to feel better and to keep our health safe. So I would like to know on this. Actually अभी कोरोना काल बहुत चल रहा है, प्राणायाम योगा ये तो बहुत सालों से है, हमारी योगी मुनियों ने बताया हुआ है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी तक किया भी है। बट अभी कोरोना की वजह से सबको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। कोरोना की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्चुअली सर हो ही रहा है सभी को, जिनको कोरोना चल रहा है उनको भी, कोरोना क्लियर होने के बाद भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो सभी में आ ही रही है। इसके लिए सबसे बढ़िया एक में इलाज प्राणायाम एंड योगा। योगा में सबसे मेन हम लोग प्राणायाम, आसन, ये सब चीज उसमें इन्वॉल्व होती है, बट प्राणायाम इज द बेस्ट। प्राणायाम की ऐसे देखा जाए तो 10 प्रकार होते हैं, बट 10 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। बट अभी कोरोना से रिलेटेड हम लोग ज्यादा जो बोलते हैं, एक भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वैसे उज्जयी देव होता है फूड इन्फेक्शन के हिसाब से भी, कोरोना में फूड इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो ये 4 प्राणायाम हम लोग ज्यादा बोलते हैं करने के लिए। तो सर भस्त्रिका मैं बताना चाहूंगी। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग भस्त्रिका करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मतलब कि हमें लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ना है
और मतलब इसे हम लोग भस्त्रिका कहते हैं। इससे जो हमारी नस नाड़ियां जो अपने बॉडी में होती है 72 लाख 10,201 ऐसी टोटल हमारे बॉडी में नस नाड़ियां है, वो सारी इससे क्लियर होती है। जब हम लोग डीप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो वो सब फिल्टर हो जाती है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्लियर। So definitely, whatever the pranayams you have told, we will try to implement in our daily life. I'm coming to Priti ma'am. रेगुलर फॉलो करने में भी आसानी होगी और ज्यादा ऐसा ट्रेस भी नहीं आएगा हम ये कर रहे वो कर रहे। इसलिए हमें छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में दी तो हम हमारी लाइफ इतनी आसान और इजी कर देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। हम अपना शरीर का ध्यान भी रख रहे और लाइफ भी जी रहे हैं। तो पहला नियम ये है, हमें 4 से 5 बजे उठना ही चाहिए। उठना मतलब उठना ही चाहिए। इस टाइम पर हम उठे तो हमारे शरीर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और आयुर्वेद में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी समय बच्चों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत बच्चों को बच्चे क्या करते, रात में जगते हैं 3 बजे तक, 2 बजे तक, 11 बजे तक। ये बहुत गलत है। उन्होंने क्या करना चाहिए, जल्दी 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास की स्टडी अगर की उन्होंने तो वो कम समय में उन्हें ज्यादा याद रहेगा। अब आते हैं अपने दिनचर्या के ऊपर। हमने उठने के बाद 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। पानी भी हमें गुनगुना पीना है। अगर आपको वेट कम करना है तो उसमें नींबू के 2-3 बूंद ही डाल के पीना है। उसके बाद शौच आदि क्रिया करने के बाद हमें योगा करना है। और एक नियम है, हम शौच करने से पहले ही हमें पानी पीना है। शौच करने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कभी भी हमें शौच के बाद में पानी कभी ही थोड़ी देर बाद ही पानी पीना चाहिए। शौच आदि करने के बाद हमें 30 मिनट वॉकिंग करनी है। वॉकिंग में हमें फास्ट वॉकिंग, स्लो वॉकिंग टेरेस पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। एक जगह खड़े होकर भी हम वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम वॉकिंग नहीं करते। नहीं, 30 मिनट हमें वॉकिंग करनी है। समझो हम सुबह नहीं कर सके तो रात में, शाम में कभी भी खाली पेट ही वॉकिंग करनी चाहिए। 30 मिनट वॉकिंग होने के बाद हमें 30 मिनट ही योगा करना चाहिए। योगा में हमें क्या करना चाहिए, योगिक जॉगिंग करनी चाहिए, 12 सूर्य नमस्कार करनी चाहिए। कुछ पीठ के बल, कुछ पेट के बल, गर्दन के, कभी आंखों के, कभी नेक के, ऐसे कुछ एक्सरसाइज हमें 30 मिनट करनी है। मगर 12 सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग हमें रोज करनी ही पड़ेगी। वो डेली रूटीन में हमें शामिल करना ही है, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। उसके बाद आते हैं प्राणायाम की ओर। मैम ने बताया आपने प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं वैसे तो हमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, तो कुछ 5 मिनट के लिए, कुछ 10 मिनट के लिए, ऐसे 20 मिनट हमें ये प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम करने के बाद स्टार्ट विथ आवर डे विथ 5 रेजन्स और बादाम हमें रोज बाज खाने हैं। वो हमारे पूरी बॉडी को जो दिन भर एनर्जी लगती है वो हमें देता है। स्टार्ट अ डे विथ हेल्दी फूड, ऐसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम है 7 से 9 बजे तक। हमें 7 से 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट खत्म ही करना है। ब्रेकफास्ट में हम कुछ भी खा सकते हैं। एक ही नियम फॉलो करना है, रिपीटेशन नहीं करनी है। आज पोहा खा लिया, कल दलिया खाएंगे, परसों उपमा खाएंगे, फिर मीठे में हलवा खाएंगे, कभी कभी मन किया तो कुछ पूरी बना ली।
ऑयली खा लिया, ऐसा नहीं कि हमें खाना ही नहीं है, खाना है, हमें सब कुछ खाना है, मगर बैलेंस में खाना है. अति तेथे माती अशी मराठीमध्ये म्हण आहे, अति सर्वत्र वर्जते. प्रमाणामध्ये आपण प्रमाण में हमें सब कुछ खाना है. और बाद में हमें कभी कभी हम एक आधा दिन फास्ट भी रख सकते हैं, कुछ नहीं खा लिया, सिर्फ मिल्क शेक पी लिया, सादा प्लेन दूध ले लिया, और कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी सूप, ऐसी वैरायटी लेकर हमें 7 दिन में अपना शेड्यूल बना के ये ब्रेकफास्ट करना है. ब्रेकफास्ट में हमें 1 बाउल दही लेना ही है. प्रीबायोटिक होने की वजह से वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. उसके बाद आते हैं हम ब्रेकफास्ट होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद हमें कुछ लिक्विड लेना ही है. लिक्विड में हम 1 ग्लास लिक्विड समझो, कुछ नींबू शरबत ले लिया, आंवले का शरबत ले लिया, बेल का शरबत ले लिया, जो नेचुरल है, जो सीजनल है, वो हमें लेने हैं. शरबत की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होती. डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, हमें कुछ मीठा खाने का होता है मन में, खाने के बाद कुछ मीठा खाएंगे, ऐसा नहीं होगा. इसकी वजह से वो शरबत वगैरह हमें लेने हैं. ये होने के बाद 12 से 2 बजे तक हमें लंच खत्म करना है. लंच में हमें क्या खाना है, 12 से 2 बजे तक रोटी, दाल, सब्जी, 1 प्लेट सलाद, कुछ मीठा हो तो मीठा ले सकते. लंच में हम क्या करते, एक ही प्रकार का ऑयल खाते हैं. आज सोयाबीन का ऑयल लिया, सोयाबीन का ही महीना भर, वैसे नहीं करने. कभी सोयाबीन का खा लिया, कभी तिल का खा लिया, कभी नारियल का खा लिया, कभी मिक्स करके ऑयल खा लिए. ऐसे हमें मिक्स करके कुछ अलग अलग प्रकार के तेल यूज करने हैं. वैसे रोटी हमें रोज गेहूं की रोटी नहीं खानी, ज्वार की रोटी ले ली, कभी मक्के की ले ली, कभी बाजरे की ले ली, कभी मिक्स करके ले ली. ऐसे अलग अलग प्रकार की रोटियां हमें खानी है खाने में. और सब्जियां हमें 1 डे आफ्टर लीफी वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे सब वेजिटेबल्स हमें अपने दिनचर्या में ऐड करने हैं. उसकी वजह से क्या होगा, हमें लैक ऑफ विटामिन मिनरल, किसी की डेफिशिएंसी नहीं होगी. उसके बाद हम चलते हैं, 1 ग्लास हमें ताक मट्ठा जिसे बोलते हैं, 1 टेबल स्पून हमें ग्लास लेना है. 1 टेबल स्पून उसमें दही डालना है, बाकी का उसमें पानी डालना है, मिक्स करना है, वैसे लेना है. नींबू भी हमारे खाने में होना ही चाहिए. 50% हमारे प्लेट होगी तो हमारे प्लेट में 50% रोटी के लिए होगा, 25% सब्जी के लिए होगा, और 25% हमारे चटनी अचार के लिए और सलाद के लिए. क्या बहुत जन क्या करते, ज्यादा सलाद खाते, वैसा नहीं करना. ज्यादा सभी हमको जरूरी होते हैं. हम रोज सलाद खा के जीना नहीं जी सकते. अगर हमने बैलेंस डाइट लिया तो जिंदगी भी मजे से निकलेगी और बॉडी भी फिट रहेगी. खाना खाते समय कुछ नियम हमें लेने हैं. पहले क्या करना है, थाली है, थाली में पहले हमें सलाद खाना है. सलाद में हम क्या ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, ककड़ी, टमाटो, भिंडी भी ले सकते हैं, छोटी छोटी गवार की फली भी ले सकते हैं. ऐसे जो हमें पसंद है वो ले सकते हैं. पहले वो खाना है, बाद में हमें रोटी खानी है, 1 बाउल दाल का लेना है, 1 बाउल वेजिटेबल का लेना है, और लास्ट में, खाने के लास्ट में ही हमें मीठा खाना है. डाइजेस्ट करने के लिए मीठा बहुत हार्ड होता है, इसलिए खाने के अंत में हमें मीठा खाना है. खाने के बीच में पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है. किसी को एक निवाला लिया, पानी पिया, ऐसा नहीं करना. खाने के अंत में ही 45 मिनट्स के बाद ही हमें पानी पीना है. आप खाने खाते समय मट्ठा और नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद हम खाना लंच अपने खत्म कर लिया. 4 से 5 बजे का टाइम जो होता है, उस टाइम हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है. हम स्कूल से घर जाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम चाय मंगा ली, बिस्किट खा लिए, समोसा खा लिया, चिप्स खा लिया. कुछ अनहेल्दी खाने का टाइम वही होता है अपना. तो उस टाइम हमें क्या करना है, हैंडफुल पीनट्स, मखाने, मुरमुरा, चिवड़ा, होममेड चकली, लड्डू, ये कुछ भी खा सकते हैं. हम हमारे कल्चर में जो होममेड है और हमारे दादी नानी ने जो खाया है, वो हम कितना भी खाए हमारे शरीर को हानिकारक नहीं. मगर हमने 1 समोसा खा लिया, वो बहुत हानिकारक है. तो उस टाइम हमें
कुछ ना कुछ खाना ही है। नियम बनाना है कि हमें 4 से 5 बजे कुछ खाना है। क्या होता, हम 4 से 5 बजे कुछ खाते नहीं। जब हम डिनर करते हैं तो हमको ज्यादा भूख लगती है। भूख लगने की वजह से हम एक्स्ट्रा और ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं डिनर के टाइम, जो बहुत गलत है। डिनर के टाइम हमें एक्स्ट्रा ईटिंग नहीं करनी है, लाइट ईटिंग करनी है। डिनर के टाइम आप खिचड़ी, चावल, राजमा ऐसा ले सकते हैं, सादा और लाइट में खाना हमें रात के समय खाना है। और डिनर हमें कब खाना है, आइडियल टाइम है 6 से 8। मैं 8 बोल रही हूँ, मगर 7 से पहले हमें डिनर खत्म करना चाहिए। कैसे नींद से पहले हम जो 3 आवर्स बिफोर हमें खाना खाना है। और एक बात है, नींद से पहले ही हमें 1 घंटा 1 ग्लास मिल्क लेना है। मिल्क में भी हमें बच्चों को बोर्नवीटा ऐड करके नहीं देना है। दूध बच्चों ने नहीं पिया तो भी चलेगा, मगर बोर्नवीटा उसमें ऐड करके नहीं देना है। कौन से ही पैकेज और पैक फूड हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए। आप वैरायटी दे सकते हैं मिल्क में, कभी गुड़ का दे दिया, कभी हल्दी का दे दिया। हल्दी का दूध देने से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसको नींद अच्छी आती है, सुसु करने की प्रॉब्लम नहीं रहती बच्चों को। और दूसरा, नट मिक्स, हम कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भी हम बच्चों को दे सकते हैं दूध में। उससे उसकी एनीमिया नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। और ड्राई जिंजर भी दूध दे सकते हैं, उसके बोन वीक नहीं होंगे, जॉइंट्स अच्छे होंगे। और एक केसर वाला दूध भी ले सकते हैं हम। 2-3 ऐसी केसर हम डाल के दूध में लिए तो हमारी हेयर और स्किन ग्रोथ अच्छी होगी। ये सादे है। एक आधा दिन हम सादा प्लेन दूध भी ले सकते हैं। नेचुरल दूध इज बेस्ट। कौन सा भी उसमें फ्लेवर ऐड नहीं करके भी हम दूध ले सकते हैं। कभी गुड़ का भी दूध अच्छा होता है। खाना खाने के बाद हमें गुड़ खाना चाहिए, अजवाइन खानी चाहिए। और एक नियम महत्वपूर्ण है कि हमें 1 टेबलस्पून घी सुबह और 1 टेबलस्पून घी शाम में खाना ही है। हमको क्या लगता है घी खाने से फैट बढ़ेगा, गुड फैट है वो, इसलिए हमें घी खाना ही है। और दूध पीने के बाद हमें और एक बेसिकली और बहुत इम्पोर्टेंट नियम है जो मैं बताना चाहती हूँ सर, कि हम क्या करते, सब काम हो गए, चलो लेट गए, मोबाइल ले लिया, देख लिया। बहुत बुरी आदत है सर ये। मैं भी अपने घर पे टीवी ऐसे 9 बजे खटाक से बंद कर देती हूँ। किसी को कुछ भी देखना हो, खटाक से टीवी बंद। सर का भी कुछ चालू रहा तो भी नहीं। नियम मतलब नियम। बच्चों भी हम जो फॉलो करते वही बच्चे फॉलो करते। नींद से पहले 1 घंटा बिफोर हमें डिजिटल मीडिया से दूर रहना है। मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना चाहिए। उस टाइम समझो अपने को नींद नहीं आती तो आप कुछ रीडिंग कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे आंखों के ऊपर ब्राइट नहीं आना चाहिए। ये मुझे लगता है, ये मैं फॉलो भी करती है और ये बहुत आसान भी है। मुझे लगता है आप सब कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you so much. You have given us a lot of info about the daily routine, and along with that, the daily eating habits, model eating habits. And sure that our students and as well as our parents must have understood, because ma'am has explained everything in Hindi. So you must have understood, and you will implement all the habits which has been shared by the ma'am in your daily routine. So thank you so much, ma'am, once again. Now we'll come back to Shastri, ma'am. Ma'am has already shared about naturopathy. So, ma'am, what do you think? Why is it important in today's era, this naturopathy? Why is it important? सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। नेचुरोपैथी की आज की स्थिति में आवश्यकता क्या है? यही है आवश्यकता कि उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं। साइड इफेक्ट्स वाली सभी पैथियां जो है हमने मनुष्य ने बनाई है, और जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला होता है, आप सभी मानते हो। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप हो और आप हो। जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसी पैथी की आज की तिथि में बहुत जरूरत है, क्योंकि एक इलाज हम करते हैं और उसके फिर 4 और हम लोगों को साइड इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लमों से लड़ते लड़ते हमारी इतिश्री हो जाती है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। ये नॉर्मली सभी पैथियों का है।
इसे ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि सर्वम खलिदम ब्रह्मासि, तो एक ही कोई है जिसने इस जहां का निर्माण किया है। ये एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये एक ही विश्व है। वैसे ही शरीर ये सबका, फिर मानव हो या प्राणी हो, शरीर ये भी एक ही मात्रा है, और रोग ये भी एक मात्रा है। उसका कारण भी एक है, वो कारण है विजातीय तत्व या एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, और उसका इलाज भी एक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वस्थ कैसे रहना है, तो प्रकृति के आधार पर स्वस्थ रहना है। ये सिर्फ मैं बोलती जा रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, पर अगर हमारा रहना, खाना, सोना, ये 3 बातें ठीक से हो तो हम कभी स्वास्थ्य से परे, रोग से ग्रस्त नहीं होते। हमारी नींद ठीक है, हमारा खाना ठीक है। अभी तो मैडम ने पूरा बता दिया आपको, सवेरे से उषपान से लेकर शाम में जो दूध लेते हैं। तो मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि सूरज की उपस्थिति में खाया हुआ या पिया हुआ हजम हो जाता है। ये पहली बात मैं कहूंगी प्राकृतिक चिकित्सा के भीतर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वायु का सेवन ज्यादा से ज्यादा हो। वायु मतलब केवल ऑक्सीजन से नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन पे लोग हैं, और फिर वो फंगस का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं। केवल ऑक्सीजन नहीं, कई सारी बातों का हमें, हवा में जितने भी वायु के प्रकार हैं उन सब की हमें आवश्यकता है। तो लंबी गहरी सांस लेना, प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम, ऐसे कहा जाता है कि हम सांस तो लेते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही तो बात हमारे साथ रहती है, सांस। बाकी तो सब साथ छोड़ देते हैं बीच बीच में। तो ये जो सांस है उस पर संस्कार करने मतलब क्या करना है कि जब हम जन्म लेते हैं तो ये सांसें हमारी शुद्ध होती है और पूरे लंग्स को भर पाती है। 5 से 6 लीटर हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, उतनी हवा हम लेते नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी सांस लेने की जो स्थिति है आलस्य के कारण कम 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 होती जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको रोगी बनना है कि निरोगी बनना है। मिट्टी के उपचार है, पानी के उपचार है, पानी के गरारे करने से लेकर पानी कितना पीना है, सबके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जो छोटी छोटी बातें हैं कि पानी कितना पीना है, तो 10 या 12 किलो का अगर किसी का वजन है तो उसके लिए 1 लीटर पानी, ये सामान्य रूप से है अनुपात। आपका तय कर लीजिए आपका वजन और पानी पीने की मात्रा, आप लोग खुद तय कर सकते हो। खाना कैसे खाना है, अभी तो आपको ताई ने बहुत विस्तार से बता दिया है खाना कैसे खाना है। बस चबा चबा के खाना है, इतना मैं कहूँ, क्योंकि खाना अगर चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए घर बन जाते। और सूर्य के हम जितना भी संपर्क में आते हैं, सूरज की किरणें जितनी हम पाते हैं उतना हम निरोगी रहते हैं। तो इसलिए सूरज के साथ अपना दोस्तीपूर्ण व्यवहार हो, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। और बची बात जो है, तो जब रोग होगा तो थेरेपी करने के लिए हम आहार के माध्यम से पहले थेरेपी करें। कि अनमनी सी अवस्था है, खाने को दिल नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बच्चों को ठूस ठूस को खिला रहे, क्यों? उसका मन नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि उसको नहीं चाहिए, उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चा मना करे तो मैं माताओं को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बच्चों को ठूस ठूस के खाने की आदत मत लगाइए। फोन हाथ में दे देते हैं, टीवी लगा देते हैं, कार्टून शो लगा देते हैं, जो बच्चे को पसंद है वो हाथ में देकर उसको इतना खिलाते हैं कि फिर उसके जो खाना खाने के बाद हजम होते हैं अतड़ों की साइज भी बढ़ जाती है मोटापे के कारण में, फिर उसे कट करके सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये माताओं का अन्याय बच्चों को बहुत होता है, ऐसा मेरे देखा देखी तो है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को ठूस कर खाने की आदत मत लगाइए। बहुत अल्प आहारी होना चाहिए हमें, अल्प निद्रा, अल्प आहार और सादगी में ही जीवन कटे तो बेहतरीन है, मुझे लगता है। कितना थैंक यू सो मच मैम। आपने जो कुछ भी बताया कि हमारे डेली दिनचर्या में क्या जरूरी है और किस तरह ये नेचर से हम खुद को हेल्दी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिम में जाना ही जरूरी है, योगा भी एक ऐसे नेचर से बनाया हुआ तरीका है जिसके जरिए हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू मैम वंस अगेन।
मैम मैं अभी बगड़िया मैम की तरफ आ रहा हूँ। मैम आपने बताया कि प्राणायाम जो है बहुत सारे प्राणायाम है, तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चे अभी घर में हैं, इवन द पेरेंट्स आर एट होम, सो घर में बैठ के ऐसे कोई कुछ प्राणायाम्स है जो आप अभी हमको बता सकते हैं जो घर में बच्चे बैठ के कर सकते हैं, एक या दो, ताकि उसको फायदा हो, और उसके साथ साथ जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। वैसे तो सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हम घर में ही बैठ के कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक एकांत जगह होनी चाहिए बच्चों के लिए भी। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को लेके बैठते हैं, 2-3 बच्चों को साथ में लेके बैठे, थोड़ा एक ग्रुप बना के बैठे, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। उसके अगर हम बेनिफिट्स बच्चों को बच्चों के स्टाइल में बताते हैं कि आपको इससे क्या होगा, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। तो मैं कहना चाहूंगी बच्चों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें ऐसा प्राणायाम है, इससे हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनती है। आप लोगों को लगता है स्कूल में बहुत होमवर्क दिया जा रहा है, ये मेरे से मतलब ओवरलोड हो रहा, कोई टीचर्स लोगों को बहुत अच्छे से पता है बच्चों की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे कितना लर्न कर सकते हैं, और बच्चे मतलब बच्चों को भी ओवरलोड हो ऐसा कोई काम टीचर्स लोग नहीं करेंगे। बहुत से बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको याद नहीं रहता है, मेमोरी प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी वीक हो जाती है। वीक किसी की भी नहीं होती, सबकी मेमोरी लेवल भगवान ने सबको सेम बनाया है और सेम दिया है, बस हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। बच्चे, हर किसी की मेमोरी, जो बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं होता है वो अदर एक्टिविटी में होशियार होता है। उसको टीवी का सीरियल पूछो, डोरेमोन पूछो, उसके नेम्स पूछो, फटाफट याद रहते हैं। यहाँ स्कूल की छोटी छोटी चीजें पूछो, कलर्स पूछो, सुबह मम्मा ने सिखाया शाम में भूल गए, क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ जाता है, इस तरफ कम है। तो ऐसा नहीं, हम लोग बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करा सकते हैं, इससे बच्चों की मेमोरी मतलब स्ट्रॉन्ग होगी और बच्चों को फ्रेशनेस, दिन भर फ्रेशनेस फील होगा, और बच्चों को हर चीज में इंटरेस्ट आएगा, उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कोई भी प्राणायाम करने से बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, और भी हम मतलब बॉडी इंटरनली फिल्टर होती है। ऐसा है ना, दिन भर आप लोग बच्चों को फास्ट फूड खिलाते रहेंगे, उसके बजाय आप बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, प्राणायाम करवाओ, तो बच्चों को बहुत यूज आएगा। और हमारे योगा में कहते हैं, 1 टाइम खाने वाला योगी, 2 टाइम खाने वाला भोगी, 3 टाइम खाने वाला रोगी। तो बच्चों, आपको डिसाइड करना है, आपको योगी बनना है, भोगी बनना है कि रोगी बनना है, ठीक है। खाने के साथ साथ आप लोग प्राणायाम का ध्यान रखो। कभी बच्चों को एक साथ 8 प्राणायाम का अगर हम पैकेज करवाते हैं तो सर बच्चे बोर हो जाते हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी भी नहीं होती। तो हमें स्टार्टिंग में आप लोग बच्चों को कभी भस्त्रिका कराइए। भस्त्रिका से हमारे बॉडी इंटरनली फिल्टर होती है, बहुत से फायदे हैं बच्चों को। थ्रोट इन्फेक्शन या जो भी सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम होती है, आप 5 मिनट कराइए। 5 मिनट खेलते खेलते बच्चे 5 मिनट बहुत शौक से करेंगे। कभी भस्त्रिका कराइए, कभी कपालभाति कराइए। कपालभाति के भी हमें बहुत से फायदे हैं। अभी कोरोना काल में भस्त्रिका जितना यूजफुल है उतना ही कपालभाति भी है, और बच्चों के लिए सबसे अच्छा, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगी अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा है। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम, कभी उज्जयी, कभी उद्गीत, कभी ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं बच्चों को। आप लोग को ओम और गायत्री मंत्र ये तो यूजुअली हर स्कूल में आजकल लिया ही जा रहा है। तो ये चीजें अपन बच्चों को सेक्शन वाइज करवा सकते हैं, मतलब कि ऐसा कि मैं ये नहीं कहूंगी हमारे सेशन में तो डेली के हम लोग 8 प्राणायाम करते हैं कंपलसरी। जो भी योगी मिलेगा आपको 8 प्राणायाम करेगा, बट बच्चों की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, उन्हें 1-1, 2-2 प्राणायाम 5 मिनट, 5 से फिर 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, ऐसे हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं। Thank you, ma'am. Now coming to our sir, the eminent personality in the field of education. So I would be asking sir about why it is important to inculcate this yoga into students. So why it is important, sir, and how it can help students in their daily life. Good morning, everyone. Good morning, teachers, panelists, parents. It's an honor and privilege to be part of this discussion. So, the panelists who are sitting with me, they are having a lot of experience and they explain very well all the things. I will explain about the natural therapy. What is the meaning of natural therapy and why it's so important nowadays? The same way the ma'am has expressed and explained about the different types of the pranayam as well as asanas.
So at the same time, ma'am has told us about the type of food and what will be the food habits one should have to have the healthy lifestyle. Now, when we talk about the students, so you know that everyone nowadays suffering from one thing, that is the competition. In the schools or wherever we are studying, every student is suffering from this competition, starting from pre-primary to higher education. Everywhere the students are facing competition. Some of the pressure is coming from the teachers, some pressure is coming from schools, some pressure are coming from the parents, a lot many pressure is coming from society. So looking into this, the biggest challenge for the student to realize their potential, what are their potential? They're every time just busy in order to realize what are their personality, what are their integrity, what are their identity. So most of the time students are struggling in order to find out their exact integrity, identity, their personality. So this is again the part of the stress to this. It's rightly said that in order to become a butterfly from the caterpillar, we have to make the efforts. So similarly, students, they have to take the efforts, but the student like the effort which the students are taking, these are on the trial basis. So because nothing is generalized, for example, if we study for 5 hours, definitely I am going to get the 90% marks. So this nothing is generalized thing. It is on the trial basis. So when the things on the trial basis, definitely it comes with number of pressure, amount of pressure is more into this. So the thing is there in the schools, how we can cope up with this. The demand or the request of the school or the student, what we should do or what we can have to do, we have to devise a mechanism where the student can cope with these W burdens. And when we talk about the burdens, so how we can do this? So for this, we should have to devise a mechanism where we have to work for the holistic development of the student, not we have to limitize them to the knowledge as well as the skills. Most of the time we are telling them to read this, read this, read this. ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे सीए बन जाएंगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे टीचर बन जाओगे. लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि अच्छा पढ़ोगे और अच्छा खाओगे तो अच्छा इंसान भी बनोगे. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए we have to work it out, and that is why the holistic development is very very important. And in part of the holistic development, we should have to mold their personality as well as we have to reshape their well-being. When we talk about the well-being, the mental well-being as well as social well-being. Every time ma'am has told the mothers are giving extra food to the kids, but at the same time, I request to all those who are with us that we should have to give them extra care rather than to give them extra food. Because when we talk about the extra care, so care is not limited only to the foods. The care is limited not only to the education. Care is not limited to the materialistic things. Care include all the things. When we talk about the care, starting from morning, what will be the wake up time? I am rightly told, early to bed, early to rise. Okay. So when we go to the bed too early and early to rise, so definitely, ma'am has rightly pointed out the memory power in the morning, because from in the morning hours, everywhere you will find a peace as well as calm. And when there is a peace and calm, you can study more, you can concentrate more. And that is the purpose of the yoga to have in our life. When we talk about the yoga, so yoga is a transformation of minds to body and body to minds. So this is a transformation. So when we talk about the transformation, so we are not limiting ourselves only to the practicing only few of the asanas. The thing is that when we are performing some of the asanas, what is the output into it? So in the school, when we keeping these type of the things, the purpose is only this, that we know one thing, that the healthy mind only where it resides only in the healthy body. If the body is healthy, then the healthy mind will be there. And if we know ourselves, because yoga is also about knowing ourselves, what we are. So in order to understand what we are, what we can do, whether we are healthy or not healthy, so this is the importance of the yoga in the school, number one. Number two, when we do these type of things that yoga practices every day in the schools, so the different things is going to elaborate in this way. For example, ma'am has pointed out all the concentration of the student. So when we talk about the concentration, you know that there is a lot many subjects are there. When we talk about the subjects, in the one subject, the number of topics are there. And when we talk about the topics, in the one topic, the number of formulas are there.
So how to focus, how to concentrate, how to memorize all these things. So I think this yoga asanas is help us, this healthy food is help us to memorize all the things, to keep all the things for a longer time in our mind. Means when we are doing these type of things regularly, it helps us to concentrate, it helps us to know our potential, that what exactly we are. So once we come to know about our potential, definitely all these things become very, very easy for us. Similarly, when we talk about the competition outside, how to take the pressure. Now that I have already told you that lot many pressure the school students are having, even everyone is facing now the during Corona, we are having facing everyone facing. So in order to take the pressure, that how much pressure we can bear, so this is only possible because if we can do these type of the exercise every day. If we are every time sleeping on the bed and if we are thinking that everything will be okay, so nothing is going to be okay. You have to make the things happen. Don't wait the things for to be happen. Fine. Try to make the things happen by your own, and for that, yoga sessions are very, very important. फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बहुत टाइम पे देखते हैं कि बच्चों को स्टेमिना की हम बात करते हैं तो they don't have the stamina. Now we tell the student to go and take a round for 2 round or 3 round in the ground, they are not able to take that round. Why? Because they don't have the stamina. And why they don't have the stamina? Because they are not practicing anything. Now if we doing the exercise, that a breathing exercise, but ma'am has told, if we regularly doing the breathing exercise, definitely we enjoy. Ma'am also I believe pointed out that every day or every time we are breathing only. We are not enjoying the breathing. Most of the time we are taking the short breathing. मतलब जैसे breathe भी सांस भी बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं, हम उसको enjoy नहीं करते हैं. We are not knowing that how much we are breathing and how to breathe it out. So if we are breathing properly, so definitely it is going to enhance your stamina. And once the stamina enhanced, so you can do the miracle in any field of your life. It's not limited only to the sports, it's not limited only to the education, it's not limited to other aspects of life. And the other thing, how to take success and failure is again a very, very important thing. Most of the time, the students are at the home, we are having only one kid or the 2 kids at home. So what is going on? All the kids are pampered kids. So they are not able to take the failure in that way that they are taking the success. So in order to take the failure, the way they are taking the success, I think the yoga is again helping them because it will keep you cool and calm. And when it's keeping you cool and calm, so far you, the failure as well as the success. When we talk about the success, definitely the student will learn how to go for the next level. And from the failure, the student will learn that how to overcome this failure and to get the success. So this is again another importance of the yoga in the school. But you have asked anger management. Most of the time, the student is showing the anger. For small thing, they are just splitting the things. Why this is with me? Why mama is saying all the things to me? Why the teachers? Most of them are वो teacher तो मेरे पीछे पड़ गया अभी तो ये सारी बातें मेरे से बुलाता है, मुझे बार-बार पूछते हैं, ए मम्मा आप मेरे से बात बुलाते हो, बड़े भाई को कुछ भी बोलते हो, छोटे को. Means anger management भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि if you practice the yoga every day, again I am telling all the things just depends upon the how much you are practicing. More you practicing, more will keep yourself cool and calm. And once you are cool and calm, definitely it will enhance your personality, which is the next aspect of the next aspect to keep the yoga in the schools. Because when the students are doing this yoga session among their peers, so definitely they learn from one another. And when they are learning from one another, so they're not only learning the yoga, they are learning how to make the social binding about oneself, how to learn from one another. At the same time, they are developing their leadership skill also. They are giving the guidance to one another. No, तू गलत कर रहा है, तेरा ये पोस्ट तो ये गलत हो गया, तेरे हाथ गलत जा रहे हैं. They start giving the instructions. Mean the leadership skills are also improving over there. So small thing, maybe ma'am has told that we have to practice this only for 15 minutes or half an hour. I think this half an hour every day we'll do is going to change our lifestyle. Is going to change our life. Is going to make our future. Now the choice with us whether to make our future or whether we have to enjoy this childhood. If we enjoy the childhood right now, sleeping on the bed, not going outside for walking, not doing any exercise, definitely we are just giving invitation to lot many diseases to us. Definitely diseases are going to come to us, and after that we have to run after doctors. Which doctor is good? Rather than we have to think that which profession is good for us, but we are asking which doctor is good.
because I'm not keeping good health. So we should have to focus on our future. We should have to focus on all the things. I think looking into all the things, according to me and in my opinion, this should be the part of each and every school, and this should practice in every morning for 10 to 15 minutes before assembly in every school. Thank you so much, sir. You have given a lot of inputs and the holistic approach for the students, how students and as well as the parents should have a holistic approach towards their daily life, and what are the different aspects that students can inculcate in their daily life. That is anger management, the care from the parents, and other aspect as well. So thank you so much, sir. At last, to conclude, I would like to ask one last question to all of you. First of all, I ask to sir only. What is the message that you would like to give to students on this occasion of this International Day of Yoga? A small message for students and parents. Yes, I just want to convey this message to all of you that if you want to keep yourself healthy, if you want to keep yourself happy, you have to practice yoga every day without fear, without any excuse. आज बाहर बारिश हो रही है, मुझे नहीं करना है, आज मुझे बाहर नहीं जाना है, रात को मैं लेट सोया था, मुझे जल्दी नहीं उठना है. We should have to go away from the excuses. We should have to throw each and every type of stress away, and we should have to focus on our goals and what we want to do and how we can do it. So this is the purpose I want to, and this is the message I want to convey to you. Thank you, sir. Preeti ma'am, from you. एक बात बोलना चाहूंगी. हमारी वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से उम्र 120 साल है. हम हमारी जिंदगी 120 साल जी सकते हैं. सर ने बताया गलत हमारे आहार विहार एक्सेस की कमी की वजह से हम ये जो जल्दी जा रहे हैं ऊपर, ये हमारे गलती करने से ही जा रहे हैं. नहीं तो हम 120 साल जिंदगी अपनी को जी सकते हैं. तो हमें योगा और हेल्दी डाइट लेनी है, यही बताओ. थैंक यू मैम. रक्षा मैम. एक्चुअली सभी बच्चों को एक क्वेश्चन होता है, मैम आप तो योगा करते हो, हमारे पास बहुत काम होता है, स्टडीज, मॉर्निंग में स्कूल, देन ट्यूशंस, देन हम लोग थोड़ा खेलना चाहते हैं. खेल के आने की मम्मा स्टार्ट हो जाती है, बच्चा होमवर्क करो, ऐसी शाम निकल जाती है. बट आपको एक चीज बताना चाहूंगी बच्चों, और हेल्थ इज अवर बेस्ट वेल्थ. अगर हमें हेल्थ के लिए कुछ करना है तो हमें अपने शेड्यूल में से कोई टाइम निकालना नहीं है. हमारा पर्सनल जो टाइम होता है, हम लोग सोते हैं, उठने के ओनली 15 मिनट्स पहले आप लोग उठो. आज मुझे आप सब बच्चों प्रॉमिस करो, कल से हम लोग अपना जो रूटीन टाइम है उससे सिर्फ 15 मिनट पहले उठेंगे, और आई एम श्योर आप 15 मिनट का वो सेशन इतना एंजॉय करेंगे, आपकी मेमोरी लेवल स्ट्रांग होगी, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे. और सर ने जैसे बताया आपको कि दिन भर फ्रेशनेस फील होगा. जो बच्चे आजकल चिड़चिड़ करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा करने लगते हैं और फटाक से रिप्लाई देते हैं. किसी भी योगी की एक कैपेसिटी, एक मतलब उनको एक सहनशीलता जो बोलते हैं हम लोग, जो वो योगी में जो होती है, मतलब आप लोग अगर डेली योगा करोगे तो आप लोगों को भी अपनी कैपेसिटी, अपना गुस्सा शांत करना, किसी को फटाक से रिप्लाई नहीं देना, ये सब चीज आप सीखोगे, जरूर सीखोगे. सो बच्चों मुझे आज प्रॉमिस करो, कल से बिफोर 15 मिनट्स आप लोग उठोगे और अपना 15 मिनट का सेशन एंजॉय करोगे. जहाँ भी मैं दिखूं, मुझे बच्चे बताते हैं, मैं स्कूल में आती हूँ, ये पगड़िया मैडम हमारे स्कूल में आए थे, योगा सिखाए थे. बस मैडम को याद नहीं रखना, मैडम ने क्या क्या चीज आपको मैम ने बताई है, मैम ने आपको क्या क्या करने को बोला है, तो वो नेक्स्ट टाइम मिलने पे आप हमको ये नहीं बोले मैम आप हमारे स्कूल में आए थे ना, ऐसे नहीं बोलोगे. मैम आपने हमको ये चीज सिखाई थी ना, हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तब मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों. सो करो योग, रहो योग. थैंक यू. Thank you, ma'am. So at last, Madhuri ma'am, what message would you like to give to students? बस यही कहना चाहूंगी कि भारतीय परंपरा के पाइक बन जाओ, कृषि परंपरा का निर्वाह करो योग, रहो निरोग, साधी राहणी, उच्च विचार, simple living is better for health. Thank you. Thank you, ma'am. So thanks to all the expertise, they have given us a lot of information and a lot of knowledge about daily routine and the eating habits. Sir has given a holistic approach to students, how students can bring out the holistic approach into their daily life. And Raksha ma'am has given us a detailed input about pranayams, what sort of pranayams are there and how these pranayams can help us into our daily life. And at last, Madhuri ma'am, she has given us the information about the nature, how we can survive, how we can take a lot of benefit from the nature and make ourselves more healthier. So thank you once again to all this expertise to being here,
and sparing your precious time for our students and our parents. So thank you once again, and we are very thankful to have you in the Podar and expecting the same cooperation from you in the future. Thank you. Thank you, ma'am. Before we go for closing of this session, if anybody has any question on the natural therapy, on the prana, or on the diet, you can ask. That's really nice that if you have any question, you can please ask. If anybody is there, they can unmute themselves. And even we have teachers also. If they have any doubt, they can also ask. Because yeah, I can see someone. Sir, yes, please. Sir. Yes. Good morning, all teachers. Good morning, respected principals. Good morning, families, and all my friends. So I would like to ask a question regarding food management, because I am a bachelor, so I eat in mess. So sometimes I eat too much rice. I don't eat chapati or bajri. So what can be the solution for that? कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम राइस भी खाते हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बोलते हैं राइस ज्यादा खाने से अपना वेट बढ़ता है, रॉन्ग थिंग। राइस हम माँ जब हमें पहला खाना देती है वो राइस ही होता है, इसलिए राइस इज बेटर। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप राइस ही खा सकते हैं। Okay, I would like to ask question to Bhagya ma'am. Most of the time we are in stress, and as a human being we usually get stress, because if we don't get stress we are not human being. So which pranayam will help us to reduce the stress? And sometimes I do get headache. So how should I avoid to live a healthy life, or which pranayam should I follow so I can enjoy my life very well? सर एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो सभी प्राणायाम हम लोग को फ्रेशनेस फील होता है, और जो स्ट्रेस हम लोग को होता है सभी प्राणायाम से दूर होता है। बट अगर आपको कभी कोई किसी चीज का किसी ने हमको कुछ कहा, हम लोग दिमाग में लेके बैठते हैं इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या अपन हम लोग किसी को रिप्लाई दे देते या हमने इसको ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए। छोटी छोटी बातों से कभी हमें स्ट्रेस आ जाता है। अनुलोम विलोम इज द बेस्ट। तो अनुलोम विलोम तो अब आपको कैसे करना चाहिए ये मैं आपको अभी बताऊं, उससे तो एक आधी बार हम लोग प्राणायाम का सेशन लेंगे या पर्सनली आप कांटेक्ट करो, हम आपको जरूर बताएंगे। प्राणायाम से हमारा पूरा स्ट्रेस दूर होता है, दिन भर की थकान दूर होती है। आप ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम करिए, बेस्ट रहेगा। Okay, I just want to another question. It is the last question for you. I'm still a student. I'm no teacher, but I'm still a student. Sometimes I go to bed very late, so I want to stop that bad habit, and I want to get up early in the morning. So what kind of strategy should I make to go early bed? And if I try to go early bed, I can't sleep. So what can be solution? ये सारी गलत आदतें हमने अपने शरीर को डाल दिए। हमारा शरीर सिर्फ अपनी सुनता है। आप रात को सोते समय या दिन भर बोलो हमें जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। आपको मैं डेफिनेटली बताती हूँ, आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह 4 बजे आपसे खटाक से उठ जाएंगे। ये सब गलत आदतें हमने अपने शरीर को खुद ने लगाई। मुझे भूख लगी, हमारे शरीर को जब खाना हो तभी हमें भूख लगती है। ये जो हमें भूख लगती है वो अलग सी मानसिक भूख रहती है, शरीर की भूख नहीं रहती। वैसे ही अगर हमने 21 दिन अगर सुबह जल्दी उठे तो 22 दिन अगर हम 12 बजे भी सो गए तो भी आपको अर्ली उठ जाएंगे। Surely I will try to follow. सबसे पहले सर आपको मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा सोने से। सबसे एक बात बताऊं, जब भी हम मोबाइल हाथ में लेंगे 1, 2, 3 कैसे बजता है आपको पता नहीं चलता। आप बुक हाथ में लो, आपकी फटाक से नींद आने लगती है। हमको क्या करना है, लास्ट सीन देखकर, स्टेटस देखकर वो क्या कर रहा है, दूसरों की जिंदगी से हमें कुछ मतलब नहीं। अपनी जिंदगी के लिए हमें जल्दी सोना है। और कौन सा भी शेड्यूल है सर, रात में काम सिर्फ मीडिया छोड़कर, कुछ डॉक्टर्स वगैरह छोड़ के, हम तो सारे शिक्षक है इसलिए तो कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं। हम जल्दी सोच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आए तो भी हम जग सकते हैं, मन में अगर विश्वास हो तो। Thank you, ma'am. Any other questions from teacher or students? Yes, please. Yes, last 2 questions. Good morning to everyone. I would like to ask one question: how much amount of water should we drink in a day? कितना पानी पीना तीन चाहिए? से 4 मैंने लीटर। पहले कहा था आपको कि
10 से 12 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी ईशानुपात से। अब ये अगर 60 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी, इस हिसाब से। Any other question, sir? 4 से 5 लीटर। I want to ask one questions, ma'am. I read one page I like about Facebook that about the fruits. So they given here what it is. The right time is not there to eat the at night. It's not right time to eat the rice. So what about it? सभी की अलग अलग मान्यता है, मगर जो डाइट अभी निकल रहे हैं सबके अलग अलग विचार है, सब अपना माल बेचने को बैठे हैं। पहले से हमारे दादी नानी राइस खाते थे, इसलिए हमें दाल राइस खाना है कि हमारे दादी नानी खाते थे। उनकी उम्र देखो कितनी थी और आज हमारे गलत आहारचर्या की वजह से कितनी है। राइस और कौन सा भी फूड लिया तो हमें लिमिट में लेना है, लिमिट के ज्यादा आपने कौन सा भी फूड लिया तो वो हानिकारक है। Is it the right time to eat the rice at night? यस, हमें मैम ने जैसे बताया सूर्यास्त से पहले अगर आपने खाना खा लिया तो आपने ज्यादा भी अगर खाना खा लिया तो हम मूवमेंट करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। एक सवाल मेरे मन में भी आया है, जस्ट आ गया मैम। लाइक वी आर वर्किंग इन स्कूल एंड यू हैव गिवन दिस एग्जांपल ऑफ नेचुरोपैथी, सो हमें थोड़ा जानना चाहते हैं कि हम स्कूल में दिन भर रहते हैं एंड स्कूल में रहने के बाद नेचुरोपैथी को हम इस स्कूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग, बिकॉज़ इट्स इन नेचर। थोड़ा सा स्कूल में नहीं, कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हो तो नेचर तो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे सांसों के साथ ही नेचर जुड़ा है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं वैसे तो, वात पित्त और कफ। तो जो बढ़ जाए उसकी थेरेपी करनी है। वात बढ़ जाए तो ज्यादा सांसें गहरी लंबी लेनी है, पित्त हो जाए तो लंघन उपवास करना है, और कफ बढ़ जाए तो गरारे करने हैं, कफ को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, गर्म खाना है, गर्म पीना है। ये 3 बातें करो तो मुझे नहीं लगता कि सेहत में कुछ गड़बड़ियां हो। बेसिकली ये 3 ही रोग है हमारे शरीर में, और 3 प्रकृति से कुछ भी नहीं है। गर्म पानी पीना है, दूसरा लंबी गहरी सांसों को लेना है, 6 घंटे कम से कम नींद हो। अभी सर ने पूछा था शाम के खाने के बारे में, तो जब गैस फ्लेम शुरू है तब तक ही खाना पक सकता है, इतना तो आपको मालूम है। खाना कब बनेगा? जब तक आपकी फ्लेम ऑन है, तब बंद हो गया गैस तो सूरज ढल गया, आपकी पाचन शक्ति, आपके शरीर में जो वैश्वानर है वो डाउन हो गया। आप कितना भी खा लोगे कुछ भी हजम नहीं होगा। आप सूरज के रहते जो भी खा जाओ वो सब हजम हो जाएगा। जैन जो पद्धति है आहार की वो सबसे बेस्ट है, ऐसे मैंने आज तक जो अध्ययन किया है उससे कह सकती हूँ। और सर ये हमारी धारणा है कि हम यहाँ काम करते हैं वहाँ काम करते हैं, 20 घंटे भी आप काम करते हैं और सूरज की रोशनी और हवा, एसी में रहते हैं तो तबीयत बिगड़ेगी, फास्ट फैन करेंगे तबीयत बिगड़ेगी, फास्ट फूड खाएंगे तबीयत बिगड़ने की संभावना पूरी की पूरी है। सारा सिंपल लिविंग इज। एक बात बताऊंगी मैं, लोकल और सीजनल हमें फ्रूट खाना है, जो हमारे आसपास मिलता है, जो सीजन में है वही फ्रूट खाने हैं। एप्पल जो सीजन में आते हैं तभी एप्पल खाने हैं। एप्पल खाने का बेनिफिट और बनाना खाने का बेनिफिट एक ही है, हमें एप्पल की ओर भागना ही है। जो चीजें हमें मार्केट में सस्ती मिलती है वही सीजनल होती है और वही हमें खानी चाहिए। मैम आपको एक सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऑयल हमें खाने चाहिए, मतलब एक ऑयल हमें इंक्लूड करना चाहिए, तो बदल के खाना चाहिए। तो जैसे कि आपने भी वर्कशॉप ज्वाइन किया था जिसमें ऑयल, बिना ऑयल का ही खाना बनाना चाहिए, तो इसके लिए आप हमें सजेस्ट कीजिए कि खाना बनाते वक्त कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हम सोया ऑयल ज्यादा यूज करते हैं या फली ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, तो कौन सा बेटर रहता है इसमें से? मैंने पहले बताया एक जैसा ऑयल हमें नहीं खाना है। समझो हमने 8 दिन ये इस्तेमाल किया तो वो चेंज करके दूसरा करडी, सब तरह के ऑयल हमें इस्तेमाल करने। ऑयल कौन से इस्तेमाल करने, एक नियम है उसमें, कच्ची घानी के ऑयल हम इस्तेमाल करने। डबल रिफाइन ऑयल जो मिलते हैं पैकेट वो नहीं लेने हैं। हमारे यहाँ कच्ची घानी का तेल मिलता है तो वहां से ऑयल परचेज करने हैं।
और एक बात, अनपॉलिश दाल हमें खानी है, अनपॉलिश राइस हमें खाने हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बताने को ऐसा मन कर रहा है, मगर टाइम लिमिटेशन है। अगर हम लोग नॉन रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो वो थोड़ा महंगा भी होता है, तो लेडीज को थोड़ा मैनेजमेंट करता है। तो हम लोग थोड़ा नॉन रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे तो एक मेरे हिसाब से थोड़ा कम यूज करेंगे। जहां हम लोग 1.5 लीटर रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे, वहां अपने आधा पौन लीटर में लेडीज बराबर मैनेजमेंट करती है। और लेडीज को ऐसे लगता है मैं ज्यादा ऑयल डालूंगी तो ये टेस्टी होगा, और वो हमने सेशन भी ज्वाइन किया था जीरो ऑयल, बिना ऑयल का, वो भी गलत है। हमें हमारे शरीर को गुड फैट्स की ज्यादा जरूरत है। जिनके एज ज्यादा हो गए, ऑयल थोड़ी बहुत मात्रा में हमें सब्जी में कौन से भी आइटम में डालने हैं, वो गुड होते हैं। ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ही वो साइड इफेक्ट देगा। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है इंफॉर्मेशन तो बहुत है हमारे पास, बट समय की पाबंदी है। सो वंस अगेन Last question. Ma'am, I have heard that we should not drink water while eating food. So what about this? थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसलिए मुझे दिनचर्या में बताना था, मेरा मिस हो गया था, आपकी वजह से मुझे बताने को मिल रहा है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय अपनी क्या बोलते हैं, वो अग्नि प्रज्वलित होती है, क्या बोलते हैं उसको, जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर आप देखो, हमने ऐसा चूल्हे के ऊपर जाल लगाया, आग लगाई, उसके ऊपर ऐसे पानी डाल दिया, फटाक से हवा निकलती है, भाप निकलती है। वैसे शरीर में हमारे, हम जब खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, जठर अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है, तब हम खाना खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। पानी ये ठंडा होता है, उसके ऊपर पानी डालने से वो जठर अग्नि शांत होती है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए हमें बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। एक आधी बार हमें ठसका लग गया कि ज्यादा ऐसा न जड़ बोलते हैं उसको खा लिया, तो एक आधा घूंट हम पानी पी सकते हैं। और खाना करने के बाद चूल जिसे बोलते हैं, गरारे करके हमें एक घूंट पानी गरारे करके पूरे दांतों को साफ करके उतना पानी हमें पीना है, ज्यादा नहीं। और 45 मिनट्स के बाद हम पानी पी सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. It was a nice interactive session. Everyone, I think, learned so many things. It was a learning session, rather. We have learned so many things from one another. I know many of you are following the same thing, but still, we know that we are a teacher at the same time we are a student. So, as a student, you should have to learn and we keep on learning all the things. So, looking into this, we are requesting the panelists, because they are expert in their own field. For example, ma'am, she has told us about the diet plan, or what should be the diet on, how we have to take and when we have to take. So we are requesting to ma'am to take a separate session on one Saturday for teacher first, so the teacher can pass the same thing to the student. I will request to ma'am, जैसे मैम ने नेचुरल थेरेपी के बारे में बताया हमें कि पानी के साथ ही सारी क्रिया, हवा ही सब कुछ है, air is everything. So we should have to concentrate more and more on our breathing, और ये के ऊपर ही हमें ज़्यादा concentrate करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल थेरेपी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। सुनते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, I don't know how many of you are knowing about sitting, those who are sitting over here. मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा नेचुरल थेरेपी के ऊपर किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं घर में, बाहर। तो उसके लिए मैं आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे हमारा एक सेपरेट सेशन ऑन दिस आल्सो। मतलब जैसे आपने अपने अलग प्राणायाम की बात करी, किस प्रकार के कौन से 8 प्राणायाम की आपने बताया कि वो सारे बेनिफिशियल है, तो अगर उसका एक सेपरेट सेशन हमारे लिए रहेगा तो दैट विल मोर गुड। I know every time you people are coming and giving your input and giving your time also, but believe me, what we are doing, this is for the social cause, nothing for the school. Looking into the benefit of the society, that what else we can give to the society. If we are knowing something and the same thing is not reaching to the public, so there is no use of that knowledge. So knowledge should go to the public and public should get benefit out of our knowledge. This is the purpose what we are doing in this class. So looking forward, these are the sessions time and again for the well-being of the society, for the well-being of the people. Thanks once again. Thanks Priyak sir for the protection of this. I just on this platform, I just want to say thanks to event coordinator for organizing this program. I want to say thanks to our sports teacher for taking the extra effort for making all the program. This is basically the CBSE initiative. The CBSE gave this program. We should have to conduct this whole thing. Being a CBSE school, so we never go away from these type of things.
whenever we get a chance, when we find that these things are good to do, and we are the first to do these type of things for the society. So looking forward, and I just want to say thanks to all the teachers, directly, indirectly, those who have participated and those who have given input during this program for making this program a huge success. Looking forward to these type of more programs in the near future. Thanks a lot. Thank you everyone. Teachers.